ویلکم بیک۔ شہر نامے کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے راجن پور میں معروف بزرگ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی بھی کی۔ انہوں نے دربار خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی اپ گریڈیشن کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اے ڈی عامر کی اس رپورٹ میں۔ آر پی او ڈیرہ غازی خان وقاص نذیر اور ڈی پی او راجن پور محمد افضل کی سربراہی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے دورہ کے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے۔ راجن پور پولیس کی جانب سے ضلع پولیس، ایلیٹ پولیس فورس، ٹریفک پولیس کے 1000 سے زائد اہلکار تعینات کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے راجن پور دورہ کے موقع پر تمام تر سیکیورٹی انتظامات کی نگرانی آر پی او ڈیرہ غازی خان اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر راجن پور کی جانب سے کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار کی جانب سے کوٹ مٹن دربار حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا دورہ کیا گیا۔ دربار پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور ملک کی تعمیر و ترقی اور عوامی خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے دربار کی توسیع کے منصوبے کا افتتاح بھی کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے چیئرمین پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی ایم پی اے سردار احمد علی خان دریشک کے بیٹے کے ولیمے میں شرکت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دورہ کے دوران پولیس کی جانب سے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا گیا۔ آر پی او ڈیرہ غازی خان اور ڈی پی او راجن پور دورہ کے دوران تمام تر سیکیورٹی معاملات کی مانیٹرنگ خود کرتے رہے اور نفری کو ڈیوٹی سے متعلق بریفنگ بھی دیتے رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار کی جانب سے عرس حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر راجن پور پولیس کی جانب سے بہترین سیکیورٹی انتظامات پر آر پی او ڈیرہ غازی خان اور ڈی پی او راجن پور اور راجن پور کی پوری پولیس فورس کو خراج تحسین پیش کیا اور عرس کے موقع پر بہترین انتظامات اور قیام امن کے لیے پولیس کی کاوشوں کو سراہا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اے ڈی عامر تھیم، میٹرو ون نیوز، راجن پور۔ پنجاب کے وزیر خزانہ مخدوم ہاشم جمع بخت کا شاہانہ ڈگری کالج کا دورہ۔ ڈگری کالج خانپور کے طلباء اور طالبات کے لیے وبال جان بن گیا۔ تعطیلات کے باوجود طالبات کو زبردستی بلوا کر صوبائی وزیر کا استقبال کروایا گیا۔ گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج خانپور میں صوبائی وزیر ہاشم جمع بخت اور تحریک انصاف کے عہدیداران کی آمد پر انتظامیہ نے باپردہ طالبات سے سیاسی شخصیات کا استقبال کروایا اور بچیوں سے سیاسی شخصیات پر پھول پھینکوائے گئے۔ ویڈیو وائرل ہوتے ہی طالبات کے والدین اور شہریوں نے سوشل میڈیا پر احتجاج شروع کر دیا اور تعلیمی اداروں میں پڑھنے والی طالبات کا وقار مجروح کرنے پر پرنسپل رفیق صدیقی اور دیگر ذمہ داروں کے تبادلے اور محکمانہ کارروائی کا بھی مطالبہ کر دیا۔ مخدوم ہاشم نے کالج یا خانپور کے لیے کسی بھی نئی گرانٹ کا اعلان تک نہ کیا۔ پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما سردار حفیظ الرحمان سنجرانی کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کا ہمارے ورکرز کے ساتھ جو رویہ ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ اسی طرح حالات رہے تو ہم اپنا اتحاد ختم کر دیں گے۔ میری اعلیٰ قیادت مرکزی اور صوبائی قیادت جناب کامل علی آغا صاحب، طارق رشید چیمر صاحب، فضل پرویز الہی صاحب نے 2 دن سے مشاورتی اجلاس بلایا جس میں ہمارے عظیم رہنماؤں نے شرکت کی اور یہ پنجاب حکومت کی ناقص کارکردگی اس کے رویے کے مطابق جو انہوں نے یہ گلہ کیا کہ اور شکوہ کیا وزیر اعظم سے کہ بھائی ہم تو اتحادی ہیں، ہم تو ساتھ دے رہے ہیں، ہم 3 سال سے ساتھ دے رہے ہیں حکومت کا، لیکن حکومت ہمارے ضلعی نمائندوں کو اور ہمارے ذیلی جو بھی ادارے ہیں ان کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہی، کوئی تعاون نہیں کر رہی، کسی قسم کے ترقیاتی کام میں ان کو شامل نہیں کیا جا رہا اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ ہم تو ان کے ساتھ نبھا رہے ہیں لیکن وہ قیادت جو ہے پنجاب کی قیادت خصوصی طور پر ہمارے ساتھ نہیں دے رہی۔ اب میں تحصیل تونسا سے بزدار صاحب کے حلقے PK 286 سے نمائندہ ہوں اور تحصیل تونسا کا رہائشی ہوں، لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ 3 سال سے مجھے کوئی وقت نہیں دیا وزیر اعلیٰ صاحب نے، سردار عثمان صاحب نے۔ حکومت گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے کسانوں کو تمام تر وسائل فراہم کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سید گلزار حسنین شاہ نے زرعی یونیورسٹی اوکاڑہ میں منعقدہ کسان کنونشن میں اظہار خیال کیا۔ مزید جانتے ہیں وقاص احمد کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ جی بالکل، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سب کیمپس دیپال پور اوکاڑہ میں گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے کسان کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔
जिसमें जिला भर से कसीर तादाद में किसानों ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सैयद गुलजार हुसनैन शाह का कहना था, हुकूमत वक्त गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को तमाम तर सहूलियात फराहम कर रही है। किसान भी ऐसी फसलों का इंतखाब करें जो कम पानी में बेहतरीन पैदावार दें। वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद तमगा इम्तियाज डॉक्टर इकरार अहमद खान का कहना था, अच्छे बीज का इस्तेमाल और बेहतरीन खादों का इस्तेमाल करने से 3 मन फी एकड़ अजाफी पैदावार का हदफ बाआसानी हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि गंदम की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ हासिल की गई गंदम के ज़िया को रोकना भी अशद ज़रूरत है। प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल खालिक ने कहा, गंदम की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी अपनाने पर जोर दिया। डॉक्टर मसूद ऐवान खान का कहना था, बर वक्त गंदम की काश्त और टाइम पर फसल को पानी लगाने से हुकूमत की तरफ से जो 3 मन फी एकड़ हदफ मुकर्रर किया गया है, इसको हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह मलिक ने बताया कि गंदम की पैदावारी मुहिम में ज़रई यूनिवर्सिटी और हुकूमत पंजाब किसानों के शाना बशाना काम कर रही है। तकरीब में डॉक्टर हसन मनीर बाजवा, डॉक्टर इमरान खान, डॉक्टर हारून जमान खान और डॉक्टर मजहर हुसैन रांझा ने भी शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर किसानों में बीज तकसीम किए गए। विकास चौधरी, मेट्रो 1 न्यूज़, रेनाला कुर्द। खबर शामिल करेंगे मियाँ चुनू से, जहां नवाही गांव में ग़िज़ाई इस्तेहकाम के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जबकि किसानों को किसान कार्ड और गंदम की पैदावारी टेक्नोलॉजी के हवाले से आगाही भी फराहम की गई। महकमा ज़राअत और ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान के तलबा और तालिबात ने गंदम उगाओ मुहिम के सिलसिले में किसान बैठक का बाकायदा इनेकाद किया, जिसमें एग्रीकल्चर ऑफिसर, महजबीन और कसीर तादाद में किसानों ने भी शिरकत की। इस मौके पर किसानों को किसान कार्ड और गंदम की पैदावारी टेक्नोलॉजी के हवाले से आगाह किया गया। ज़रई यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने किसानों को गंदम की पैदावार पर जदीद टेक्नोलॉजी, उनके सिफारिश करदा अद्वियात, बीज और तरीक़ा काश्त के हवाले से आगाह किया। इस मौके पर किसानों ने महकमा ज़राअत और ज़रई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर गंदम की काश्त को यकीनी बनाएंगे और हुकूमत के इस विजन पर भरपूर साथ देंगे। डीजल और बिजली की बढ़ती कीमतों के बाद अब किसानों को काश्तकारी के लिए पानी भी महंगा मिलने लगा। कहरोड़ पक्का में ज़रई ट्यूब मालिकान ने ट्यूब वेलों का पानी भी महंगा कर दिया, जिसकी वजह से छोटा काश्तकार शदीद मुतासिर हो रहा है। मजीद देखते हैं कहरोड़ पक्का से अपने नुमाइंदे हसनैन खान की इस रिपोर्ट में। डीजल और बिजली रेट के रोज बरोज बढ़ते हुए इजाफे से अब किसानों को पानी भी महंगा मिलने लगा है। हुकूमत की जानिब से बिजली के रेट बढ़ाने पर ट्यूबवेलों का पानी भी महंगा मिलने लगा है। महंगाई से सताए किसानों का कहना है कि पाकिस्तान की जो मईशत की रीढ़ की हड्डी है वो ज़राअत है। पाकिस्तान में अब ज़राअत बिल्कुल ज़वाल पजीर हो चुकी है। उसकी जो वजूहात हैं वो डीज़ल खाद और बिजली की कीमतों में इजाफा है। छोटे काश्तकार को ट्यूबवेल का पानी जहां पहले फी घंटा 400 450 में मिलता था, अब 600 650 और 700 तक मिल रहा है। छोटा किसान बिल्कुल परेशान है और वो हुकूमत के इस इंतज़ार में है कि कब कोई अच्छा पैकेज बिजली, खाद और डीजल में जो है मिलेगा। किसानों का मजीद कहना है कि हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से हमारी ज़राअत ज़वाल पजीर हो चुकी है। बिजली के रेट बढ़ने से ज़राई ट्यूबवेल मालकान मजीद पानी महंगा कर रहे हैं। दीगर ममालिक में तो किसानों को बिजली भी मुफ्त फराहम की जाती है। पानी महंगा होने की वजह से छोटे काश्तकार शदीद मुतासिर हो रहे हैं। पानी महंगा होने से पैदावारी लागत बढ़ गई है। हुकूमत की तरफ से देख रहे हैं कि कब रिलीफ पैकेज मिलेगा और किसान खुशहाल होगा। कैमरा टीम नासिर इस्लाम के साथ हसनैन खरिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पक्का। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए शहरनामे के साथ। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि सादकाबाद में पुलिस अंदर गैंग के आगे बेबस हो गई। 1 माह कबल माही चौक में दिन दहाड़े 9 अफराद का कत्ल करने वाले कानून के शिकंजे में ताहाल ना सके। एक बार फिर अंदर गैंग ने 9 मकतूलीन की कमात की खड़ी फसल को आग लगा दी।
उधर गैंग ने माही चौक में एक बार फिर मकतूलीन की कमात की फसल को आग लगा दी, जिससे फसल जलकर राख हो गई। पुलिस इत्तला के बावजूद मौके पर ना पहुंच सकी। एक माह कबल 10 अक्टूबर को भत्ता ना देने पर दिन दिहाड़े उधर गैंग ने के 3 मुसल्लह डाकुओं ने पेट्रोल पंप पर फायरिंग करके 9 अफराद को कत्ल कर दिया था। पुलिस ने उधर गैंग के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर ताहाल किसी को भी गिरफ्तार ना कर सकी, जबकि डाकुओं का खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ मुद्दई मुकदमा भी मुद्दयत से दस्त बरदार हो गया था। मकतूलीन का कहना है कि चंद रोज कबल डाकुओं ने फसल को आग लगाने की धमकी दी थी और हमने DPO रहीम यार खान को इस बारे में आगाह भी किया था, मगर पुलिस हमें तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। खबर शामिल करेंगे चकवाल से। चकवाल में इंसदाद खसरा और रुबेला की मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डिप्टी कमिश्नर की क़यादत में आगाही वॉक का इनेकाद भी किया गया। महकमा सेहत ने चकवाल में 9 माह से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को हिफाजती टीके लगाने और पैदाइश से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव की हिफाजती वैक्सीन के कतरे पिलाने का बाकायदा अमल शुरू कर दिया है, जिसके जायजे के लिए डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम ने DHQ अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के वैक्सीनेशन काउंटर पर बच्चों को हिफाजती टीके और वैक्सीन के कतरे पिलाने के अमल का जायजा भी लिया, जबकि काउंटर पर मौजूद 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। इंसदाद खसरा और रुबेला मुहिम 27 नवंबर तक जारी और सारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर के ज़ेरे क़यादत आगाही वॉक भी मुनक्किद की गई, जिसका मकसद डायबिटीज से बचाव का पैगाम आम करना था। गुजरावाला में कौमी इंसदाद खसरा और रुबेला वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज कर दिया गया है। 9 माह से 15 साल तक के 22 लाख से जायद बच्चों को खसरा और रुबेला से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी। इस बारे में मजीद जानते हैं गुजरावाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। जी नदीम डार, मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, कौमी इंसदाद खसरा व रुबेला मुहिम वैक्सीनेशन का आगाज़ कर दिया गया है। 15 नवंबर से 27 नवंबर तक ये मुहिम जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला दानिश फजाल के मुताबिक गुजरावाला में 22 लाख से ज़ायद बच्चों को खसरा और रुबेला से बचाव की वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। इस सिलसिला में महकमा सेहत की जानिब से 7,000 से ज़ायद जो टीमें तश्कील दे दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला ने वालिदैन उलमा कराम और असातिज़ा से अपील की है कि इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें, ताकि हमारे बच्चे इन मौजी मुराद से बच सकें। जी और अभी आपको बताएं कि काले की मंडी में इंटरचेंज के करीब 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में 6 अफराद जख्मी हुए। आपको बताएं कि लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर उलट गई, जिसके नतीजे में पीछे से आने वाली 5 मजीद कारें एक के बाद दीगरे एक दूसरे से जा टकराईं। हादसे में 6 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको बताएं कि झंग में मलवाना मोड़ के करीब सफाक नौजवान ने मां, बाप और बहन को कत्ल कर दिया। मुलजिम मंजर मौके से फरार भी हो गया। मुलजिम ने कुल्हाड़ी के वार करके मां, बाप और बहन को कत्ल किया। लाशें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने पसंद की शादी ना करने पर अपने वालिदैन और बहन को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की जानिब से मुलजिम की तलाश जारी है। डेरा गाजी खान में DPO मोहम्मद अली वसीम की हिदायत पर DSP मोहम्मद फारूक, इंचार्ज CIA स्टाफ अली मोहम्मद, इंस्पेक्टर SI हामिद मकबूल, SHO सदर करम इलाही ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में खतरनाक असलहा बरामद कर लिया। दौरान चेकिंग मशकूक कार रोकने पर कार में से 23 अदद पिस्टल, 1 अदद SMG और 9,000 गोलियां बरामद कर ली गई। जी बिल्कुल, DPO मोहम्मद अली वसीम की खसूसी हिदायत पर जिला भर में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुहिम जारी है। डेरा गाजी खान पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस खसूसी मुहिम के दौरान इंचार्ज CIA अली मोहम्मद, इंस्पेक्टर हामिद मकबूल, SI SHO थाना सदर करम इलाही टीम ने दौरान चेकिंग मशकूक कार को रोककर भारी मिकदार में नाजायज असला बरामद किया।
डी पी ओ मोहम्मद अली वसीम ने खसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि जिला भर में अमन अमान कायम रखना हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। इस पर अमन दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा, जबकि बदअमनी फैलाने वाले अनासर को इबरत का निशान बना दिया जाएगा। इंचार्ज सीआईए SHO थाना सदर व टीम ने कार नंबरी AE-B073 से भारी मिकदार में असला जिसमें 23 अदद पिस्टल, 1 अदद SMG और 9000 गोलियां थी बरामद कर ली और कार में सवार मुलजिम असला स्मगलर यासर खान व नसीर खान, कोम खेल, मोहम्मद सकना अजीज खेल जिला पिशावर, अजीज रहमान वाल खान अब्बास को मफरवी सकना असमाइल खेल क्वार को गिरफ्तार कर लिया। DPO मोहम्मद अली वसीम ने कहा कि जिला भर में अमन अमान कायम रखने के लिए तमाम वसाइल बरूए का। हाजी मोहम्मद सईद गिंदी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, मेट्रो 1 न्यूज, डेरा गाजी खान। खानेवाल के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद नदीम अब्बास की क़यादत में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलिस ने खिलाफ वर्जी करने वाले 41 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। थाना सदर खानेवाल की पुलिस ने हवाई फायरिंग, आतिशबाजी और साउंड सिस्टम की खिलाफ वर्जी करने वाले 41 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया और उनसे नाजायज़ असलहा, आतिशबाजी का सामान और एम्पलीफायर, साउंड सिस्टम वगैरह भी बरामद किया। नाजायज़ असलहे में मुलव्वस मुल्जिमान के खिलाफ मजीद इंटेरोगेशन जारी है। DPO सैयद नदीम अब्बास ने SHO थाना सदर खानेवाल सफ़र इम्तियाज़ और टीम की कारकर्दगी को खूब सराहा। हुजरा शाह मुकीम से आपको खबर देते चलें कि हुजरा शाह मुकीम में मसनूई खादों की सादात वेयर हाउस पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से छापा मार कर खाद की 3600 बोरियां कब्जे में ले ली गईं, जबकि 40,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया। हुजरा शाह मुकीम में हवेली रोड पर खाद के सादात वेयर हाउस पर कार्रवाई करते हुए ज़िलाई तहसील इंतज़ामिया और महकमा ज़राअत ने पुलिस नफरी के हमरा DPO सोना यूरिया सरसब समेत मुख्तलिफ ब्रांड की खाद की 3600 बोरियां अपने कब्जे में ले लीं। स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर कार्रवाई करने वाली छापामार टीम ने गैर कानूनी स्टॉक की गई खाद कब्जे में लेकर सादात वेयर हाउस के मालिक नज़र अब्बास शाह को 40,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया, जबकि सराय के मुताबिक खाद का पकड़ा गया स्टॉक सरकारी अमला अपनी निगरानी में हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट्स पर फरोख्त कराएगा। उकाड़ा में थाना B डिवीजन पुलिस ने कमाबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुतादिद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। थाना B डिवीजन पुलिस ने जवाब पर्ची फरोख्त करने पर 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से सामान, कमाबाजी, नकदी और जवाब पर्ची के बॉक्स बरामद किए गए। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। DPO फैसल गुलजार का कहना था कि किसी को भी कानून की खिलाफ वर्जी करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ठुल में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ प्राइमरी स्कूलों के असातिज़ा सड़कों पर निकल आए। टायर नजर आतिश करके SHO ठुल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ नबी बख्श से। जी नबी बख्श, मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं ठुल प्रेस क्लब के सामने, जहाँ पे रोज क्राइम का कंट्रोल पे बर्दात हो रहे हैं। यहाँ पे शहरी इत्तेहाद और मास्टर इत्तेहाद की तरफ एहतजाज किया हुआ है ठुल प्रेस क्लब के सामने। आइए मजीद हमारे कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। पेट्रोल तलका ठुल की जानिब से किया गया है, जिसमें तलका ठुल शहर में बदअमनी चोट भी कर गई है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे नाअहल SHO लगाए गए हैं। कुछ वक्त टाइम पहले जो मानी SHO था, उसके होते हुए बिल्कुल सारे लोग आराम की नींद से सो रहे थे, मगर जैसे उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, कुछ वडेरों को खुशनुदी हासिल करने के लिए नया SHO लगाया गया है। इसके आते ही ये और इसका जो बड़ा मुंशी है वो दोनों चोरों से मिले हुए हैं। पर मुकर्रर हुआ है, जब से ये मुकर्रर हुआ है शहर में वारदातें बढ़ती जा रही हैं। कुछ दिन पहले काफ़ी दोस्तों की मोबाइल छीनी गई थी। उसके बाद 3 दिन पहले KB रेस्टोरेंट है, वहाँ से मोटरसाइकिल चोरी हो रही थी, चाबी चोरी कर रहा था, वहाँ पकड़ा गया वो। उसके बाद कल ये मोजिज उस्ताद भी है, PTLF का रहनुमा भी है, उसकी मोटरसाइकिल उसके दुकान के आगे से ही चाबी चोरी करके ले गए। जो एहतजाज करें PTLF तालुका ठुल की तरफ से, जिसमें हमारे साथ दिया है सियासी, समाजी और मजहबी धुरियों ने। देखिए, अमन अमान के मसले की वजह से
दिन ब दिन यहाँ की जो सिचुएशन है बहुत ख़राब होती जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये पुलिस का काम है। कल भी हमारे उस्ताद है मोजिज़ है, उसके मोहम्मद शरीफ बुरुडो, उसकी भी मोटरसाइकिल को यहाँ से चोरी करके गए। 4-5 पहले और उस्ताद है, उनकी भी मोटरसाइकिल चोरी करके गए। मज़ीद खबरें भी शहरनामे में शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए शहरनामे के साथ। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि बिहाड़ी में सहाफ़ी का खबर शाये करना भी अब जुर्म बन गया। जराइम पेशा अफराद ने सहाफ़ी को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। बिहाड़ी के सीनियर सहाफ़ी जाहिद हांस को खबर शाये करने पर जराइम पेशा अफराद की जानिब से डंडों से वहशियाना तशद्दुद किया गया, जिसके बाइस सहाफ़ी जाहिद हांस का बाजू और टांगे शदीद जख्मी हुई, जबकि सर पर भी गहरी चोट आई। रेस्क्यू 1122 ने जख्मी सहाफ़ी को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बिहाड़ी मुंतकिल किया, जबकि तशद्दुद के वाक़े के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों ने एहतजाज करके IG पंजाब से नोटिस लेने का भी मुतालबा कर दिया। कसूर में नॉन स्टॉप डकैतियों का सिलसिला ताहाल ना रुक सका। मुस्तफाबाद में 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार डाकुओं निजी पेट्रोल पंप के मैनेजर से 28 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। आपको बताएं कि मेट्रो 1 न्यूज ने डकैती की CCTV फुटेज हासिल कर ली। पेट्रोल पंप का मैनेजर पंप से बैंक की तरफ आ रहा था कि डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। रकम न देने पर डाकुओं ने हवाई फायरिंग भी की। नामालूम मुल्जिमान रकम छीन कर लाहौर फरार हो गए, जबकि वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस थाना मुस्तफाबाद ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। शहरियों का कहना है कि कसूर पुलिस नॉन स्टॉप डकैतियों को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार IG पंजाब से अपील करते हुए कहा कि कसूर के अवाम के हाल पर भी रहम किया जाए। डेरा गाजी खान थाना चोटी पुलिस 1 माह बाद भी मकतूल असगर अब्बास के कातिल को गिरफ्तार ना कर सकी, जिस पर RPO ऑफिस के सामने असगर अब्बास के रिश्तेदारों और इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नजर खान भट्टी से। जी नजर खान, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान RPO के सामने और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ डेरा गाजी खान के इलाके थाना चोटी में एक कत्ल हुआ है, जो कि जिसको 1 माह हो गया है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पुलिस की गफलत या नाअहली या कोई सियासी सपोर्ट तकरीबन 1 माह से ज़्यादा का अरसा हो गया है, जो कि मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, जिस पर उसके रिश्तेदारों ने RPO ऑफिस के सामने एहतजाज किया है। जो कि जिस बच्चे को मारा गया है उसकी उम्र तकरीबन कोई 16 साल है और उसके वालिद साहब भी फौत हो चुके हैं, जो कि बच्चा ही बहुत ही ज़्यादा गरीब घराने से है। उसके भाई भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आइए इस हवाले से तफसीलात जानते हैं कि इनका क्या कहना है और पुलिस अब तक उनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही, जो कि 1 महीना गुजर गया है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैं चोटी जरीन थाना पुलिस स्टेशन से आया हूँ, जो कि छोटी पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही, इसलिए हम RPO DPO के दफ्तर के सामने सरापा एहतजाज हैं इंसाफ की उम्मीद के साथ। तो सर, छोटी पुलिस हमारा साथ बिल्कुल नहीं दे रही। इसका मतलब ये तो है कि तफ्तीशी अफसरान जो भी हैं वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, अमला नहीं है। पुलिस जो है आपका साथ क्यों नहीं दे रही, इसकी क्या वजह है? वजह सर मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो चेयरमैन है ना, उसके हाथ से कातिल के बाप ने उसको 2 लाख दिए, जिससे वो 2 लाख चेयरमैन ने तफ्तीशी अफसर इमरान हमीद माड़ा को 2 लाख दिए और इमरान हमीद माड़ा ने कल या परसों अपना ट्रांसफ़र करवा के किसी और इलाके चले गए हैं। इसका मतलब हमारा पुलिस साथ नहीं दे रही, इसलिए हम वज़ीर आला उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पाकिस्तान से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि उसका भाई है जो पुलिस पर इल्ज़ाम ऐड कर रहा है, जो कि 2 लाख लेकर अपना तबादला करवा गया है और इनकी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अपील है, मुतालबा है कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। जी। और अभी आपको बताएं कि उकाड़ा दिबालपुर रोड पर ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जान से गए, जबकि खातून जख्मी हो गई। जाबहक होने वाले अफराद की शनाख्त इकराम और 3 साला बेटी महनूर के नामों से हुई। जख्मी खातून फरजाना को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। थाना सदर पुलिस ने फरार ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के विजन के मुताबिक सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब मोहम्मद अल्ताफ़ खान बलोच ने बिहाड़ी में अचानक दौरा किया। इस वक्त नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ अब्दुल्ला मलिक ज़िला कौंसल हॉल बिहाड़ी में मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। जी अब्दुल्ला मलिक, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं?
جی میں اس وقت موجود ہوں ضلع کونسل وہاڑی میں. میرے ساتھ موجود ہیں سیکٹری لوکل گورنمنٹ جنوبی پنجاب محمد الطاف خان صاحب جن کا سرپرائز وزٹ ہے وہاڑی میں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں وہاڑی کے وزٹ کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. ایک تو یہاں پہ ہمارا جو صفائی ستھرائی کا نظام ہے اس کو چیک کرنا تھا. اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں ہماری, پھر ہماری محکمانہ جو ریویو میٹنگز ہوتی ہیں اب وہ میں تمام ڈسٹرکٹس میں جا کے کر رہا ہوں, تحصیل لیول پہ بھی جا رہا ہوں. تو وہاڑی میں نے دیکھا ہے کہ یہاں ماشاءاللہ اچھے انتظامات ہیں, ہمارے اسٹاف نے بڑی محنت کی ہے. اس کے علاوہ باقی جو ہماری اسکیمیں ہیں وہ بھی اسموتھلی چل رہی ہیں. اس کے علاوہ بھی جو ایشوز ہیں یہاں پبلک کے, میں یہاں آج کھلی کچہری کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ ٹائم کی شارٹیج تھی. تو یہ ہے بنیادی مقصد آج کے وزٹ کا. یہ میرے ساتھ موجود تھے سیکٹری لوکل گورنمنٹ جنوبی پنجاب محمد الطاف خان صاحب. ان کا کہنا ہے کہ سرپرائز وزٹ میں وہاڑی کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے اور سکیموں کے حوالے سے ادھر چیک کیا گیا اور یہاں پر بہترین انتظامات ہیں. جی افسوسناک خبر دیتے چلیں کہ پھول نگر کے نواحی گاؤں میں 26 سالہ نوجوان کو اس کے رشتہ داروں نے ہی قتل کر دیا جبکہ لاش گھر کے قریب گڑھا کھود کر دبائی گئی تھی. آپ کو بتائیں کہ پتوکی کے نواحی گاؤں میں رشتہ داروں نے ہی ذاتی رنجش کی بنا پر نوجوان کو اغوا کرنے کے بعد قتل کر دیا اور لاش کو گھر کے صحن میں گڑھا کھود کر دبا دیا اور قاتل ورثہ کے ساتھ لڑکے کو ڈھونڈنے کا ڈرامہ کرتے رہے. جبکہ شک کی بنا پر ورثہ اور اہل محلہ نے پولیس کو اطلاع دی جس پر پولیس نے لاش برآمد کر کے پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی. بیٹے کے قتل کی خبر ملتے ہی ماں پر غشی کے دورے پڑنا شروع ہو گئے. پولیس معاملے کی مزید تحقیقات کر رہی ہے. سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں انجمن تاجران سندھ کے ذمہ داران نے میٹرو ون نیوز سندھ بیورو آفس کا دورہ کیا. انہوں نے کہا کہ میٹرو ون نیوز کی ٹیم عوام کی آواز بنی ہوئی ہے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے نوید فاروقی کی اس رپورٹ میں. حیدرآباد میں میٹرو ون نیوز چینل سندھ بیورو آفس میں انجمن تاجران سندھ کے ذمہ داروں نے میٹرو ون نیوز سندھ بیورو آفس کا دورہ کیا. انہوں نے کہا کہ میٹرو ون نیوز کی ٹیم عوام کی آواز بنی ہوئی ہے. تاجران سندھ حیدرآباد سے آپ سے مخاطب ہے. بلال بھائی کے لیے خاص طور پر ہم یہاں پر میٹرو چینل کے اوپر آئیں اور کافی دنوں سے ہم یہاں پر آ رہے تھے, دوسری جگہوں پر بھی. آج ہم نے انجمن تاجران سندھ کے دفتر کا یہاں افتتاح بھی کیا ہے ضلع تحصیل لطیف آباد کا, اور میٹرو چینل کے اندر آئیں ان کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہ حیدرآباد کے اندر میٹرو چینل تاجر برادری کے لیے جو کام کر رہا ہے اور جو ٹیم کام کر رہی ہے ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور میری ایک بہت بری عادت ہے کہ میں جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے نام نہیں لیتا ہوں, اپنے ذمہ داروں کے نام لیتا ہوں. نوید بھائی آپ کی نالج میں ڈال دوں میں. تو میری خواہش ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کوارڈینیشن میں رہیں اور آپ کی پوری ٹیم کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک آدھ دن میں اپنے دفتر میں بلائیں گے اور ریفریشمنٹ پہ انوائٹ بھی کریں گے. دیکھیے میٹرو ون نیوز ایک ایسا درخت ہے جس کے پھل پورے سندھ میں پھیلے ہوئے ہیں اور الحمدللہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ کراچی سے نکلنے والا وہ پودا اور آج پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس کا نام جا رہا ہے. اور حیدرآباد کے حوالے سے جو آپ نے بات کی مجھے بڑی خوشی ہوئی بیورو آفس میں آ کے, اور میں نے میٹرو نیوز چینل کا دورہ کیا ہے. واقعی میٹرو نیوز چینل جو تاجروں کے مسائل کو اجاگر کرتا ہے اور ان کو حل کرانے کے لیے جو ارباب اختیار تک بات کو پہنچاتا ہے, اس کے لیے ہم ان کے بہت مشکور ہیں میٹرو نیوز چینل کے. یونٹ نمبر 11 میں میٹرو نیوز چینل کے آفس کا ہم نے دورہ کیا جہاں پہ ہماری ملاقات نعمان بھائی سے نوید بھائی سے ہوئی, کیونکہ یہ بڑی مشکل سے ہمیں آفس میں نظر آتے ہیں. ہمیشہ جہاں بھی کوئی کام ہوتا ہے, کوئی حیدرآباد کی خبر ہوتی ہے تو یہ وہیں نظر آتے ہیں ہمیں. تو سب سے پہلے نا ہم نے ان کو دیکھا میٹرو چینل کیا کوئی ثانی نہیں ہے جو حیدرآباد کی خبروں کو سب سے بڑھ چڑھ کے آگے ہو کے بتاتا ہے, لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرتا ہے. شکریہ. ان کی بہترین خدمات کو دیکھتے ہوئے اظہر رضوی اور نوید بھائی یہ شہر کے حالات کو بہت اچھا کوریج کرتے ہیں. ہم ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اپنے انجمن تاجران سندھ کے وفد کے ساتھ ان کے دفتر میں تشریف لائیں. کیمرامین شہباز رضوی کے ساتھ محمد نوید, میٹرو ون نیوز حیدرآباد. گورنمنٹ گریجویٹ کالج آف کامرس جھنگ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت پرنسپل ملک مراد سعید کی. کانفرنس میں کالج کے فیکلٹی, طلباء اور طالبات اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. گورنمنٹ گریجویٹ کالج آف کامرس جھنگ میں سیرت النبی کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا. سیرت النبی کانفرنس میں ڈی ایس پی سٹی سرکل جھنگ رائے سیف اللہ بھٹی, پرنسپل جی سی سی وہاڑی میاں محمد حنیف جوید,
प्रिंसिपल GCC शोरकोट मोहम्मद इकबाल हसारी ने बतौर मेहमाना एजाज शिरकत की। सीरत नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना हमारे लिए मिशले राह है। ऐसे मौके पर हमें तजदीद करना होगा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साया रहमत और दो जहां के बादशाह हैं। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे से मुतालबा करती है कि मैं, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ आपके दरमियान। एक कलामुल्लाह है, कुरान मजीद। जब कुरान मजीद में इरशाद हुआ कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए मशअल राह है। कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर मुकाबला हुस्न किरत, नात ख्वानी में पोजीशन होल्डर्स, बच्चों में मेहमानों ने ट्रॉफियां तकसीम की, जबकि प्रिंसिपल मलक मुराद सईद ने मेहमानों को यादगारी शील्ड्स पेश की। कैमरा टीम के हमरा इमरान अंसारी, मेट्रो वन न्यूज़, झंग। और अभी आपको बताएं कि ननकाना साहब में सिख मज़हब के बानी और सिखों के मजहबी और रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात के मौके पर तमाम तालीमी इदारे 5 दिन के लिए बंद रहेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात के सिलसिले में शहर में वाक़े सरकारी और निजी 26 स्कूलों में 5 रोज़ा तातीलात का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक स्कूल 17 नवंबर से 21 नवंबर तक बंद रहेंगे, जबकि महकमा तालीम के तमाम दफातर मामूल के मुताबिक अपनी महकमाना सरगर्मियां जारी रखेंगे। खानपुर में प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन की जानिब से सिटी पार्क में 5 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालबात ने मुख्तलिफ खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक नुमान की इस रिपोर्ट में। खानपुर के सिटी पार्क में प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस एसोसिएशन के ज़ेरे इत्माम 5 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का इनकाद किया गया, जिसके मेहमान ख़ुसूसी चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी खानपुर मियाँ शहजाद अनवर, साबिक सूबाई वज़ीर बैतुल माल चौधरी मोहम्मद इजाज शफ़ी ने रिबन काट कर तकरीबात का इफ्तिताह किया, जिसके बाद मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजेस के तलबा ने मुख्तलिफ गेम्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये उन स्पोर्ट्स गाला का सिटी पार्क में तकरीब का इनकाद कराने पर म्यूनसिपल कमेटी मियाँ शहजाद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नज़ीम इकबाल रहमानी और मकामी इंतज़ामिया के बेहद मशहूर हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ कराने से हस्पताल वीरान होते हैं और खेलों के मैदान आबाद होते हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खानपुर सिटी पार्क में 5 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला की तकरीबात में शहरियों ने भी भरपूर शिरकत की और तलबा की हौसला अफजाई की। शहरियों का कहना था कि ऐसी तकरीबात का इनकाद होना चाहिए, इससे बच्चों में अवेयरनेस पैदा होती है। ऐसी एक्टिविटीज़ की वजह से खेलों के मैदान आबाद होते हैं और हस्पताल वीरान होते हैं। कैमरामैन जमान मलिक के साथ मलिक नुमान, मेट्रो वन न्यूज़, खानपुर। कोट अदू में दरिया सिंध ने शिकारी ने 1 मन की मछली पकड़ दी है, जबकि कोट अदू में मुजाहिद मछली के चर्चे जारी हैं। मुजाहिद मछली शिकारी से उठाई ना जा सकी। फुटेज मेट्रो वन न्यूज़ को मौसूल हो गए। फुटेज में देखा जा सकता है कि शिकारी मुजाहिद मछली को उठाने की बारहा कोशिश कर रहा है, मगर शिकारी को हर वक्त नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। शिकारी ने बेबस होने के बाद मुजाहिद मछली को दरिया सिंध में वापस छोड़ दिया। और इसी के साथ शहरनामे से फिलहाल इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।